A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts. Dear students, in the previous lecture, we have started our last chapter, that was consumer protection. In the last lecture, we have discussed about the importance of consumer protection and three-tier redressal agencies for the consumers. Now, dear students, in our 54th lecture today, we are going to discuss about the consumer rights and responsibilities. Initially, we will start with consumer rights. As per the government norms and as per the rules of government have provided a lot of rights to the consumer. Mainly, there are six rights. These are, the very first right is the right to safety. According to this right, the consumer have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life. And what is according to this right? This according to this right, the consumer is having the right of safety of himself or herself from the goods which are very hazardous for the life and property of the particular consumer. That means these type of goods must not be sell out as per the right of safety. See further, this right is important for the safe and secure life. कंज्यूमर की सेफ और सिक्योर लाइफ के लिए जो राइट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस राइट इंक्लूड्स कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट. ये कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए भी है और उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट भी है. सेकेंड राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन. According to this right, the consumer has a right to get information about the quality, quantity, purity, standard and price of the goods or services. बेटा इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इज़ हैविंग द राइट, कंज्यूमर को एक राइट है कि वो क्या करेगा. द कंज्यूमर इज़ हैविंग राइट दैट द पर्टिकुलर कंज्यूमर मस्ट नो अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कमोडिटी. दैट मीन्स एवरी ऑफ द कंसर्न इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गुड और सर्विस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. सो दैट द कंज्यूमर कैन बी अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब है, इसकी एक्सपायरी कब है, कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स एंड सो ऑन comes under the category of the right to information. You people used to see as well different products, different, suppose you have purchased a packet of chips. In that chips also you used to get the ingredients, date of expiry, date of manufacturing. All this comes under the category of the rights to information. The next one, right to make choice. According to this right, every consumer has the right to choose the good or service of his or her likings. इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को इस बात का राइट अवेलेबल है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विस को क्या करे, सेलेक्ट करे. इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी द एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वैरायटी of the goods at the competitive prices. Two elements are there: various variety of the product and the competitive price. This is comes under the category of the right to make choice. The producer or supplier or the retailer should not force the consumer or the customer to buy a certain brands only. और इस राइट के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर आपका प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, रिटेलर है, उसे कंज्यूमर को बाउंड नहीं करना चाहिए किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को परचेज करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. सी द नेक्स्ट वन, right to be heard or right to representation. And what is this right? According to this right, consumer can present himself or to be heard or the right to advocate his interest. कंज्यूमर को इस बात का राइट है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपनी बात को लोगों के सामने कह सके और अपने राइट्स को एडवोकेट कर सके. In case a consumer has been exploited or has any complaint against the product or service, then he has a right to be heard. अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से कोई कंप्लेन है या कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हुआ है, इन दिस कंडीशन द कंज्यूमर इज हैविंग द राइट टू बी heard and must be assured that कि जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी जस्टिफिकेशन है वो उसके साथ होगा. Next, right to seek redressal. And according to this right, consumer must get compensation or seek redressal against unfair trade practices. अगर कोई unfair trade practice हुई है, कोई exploitation हुआ है, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर के पास राइट है कि वो क्या कर सके, उसके रिटर्न में वट एवर द लॉस इज देयर उसको क्या कर सके, कंपनसेट करवा सके. दिस इज द राइट टू सीक redressal.
The right assures justice to consumer against exploitation. This right basically ensures that the justice will be provided to the consumer. The right to redressal includes compensation in the form of money. अब वो आपका जो compensation है वो कैसे हो सकता है? It can be in the form of money और रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, जो आपका डिफेक्टेड गुड मिला उसको रिप्लेस कर दिया, और रिपेयर द डिफेक्टेड गुड, जो भी उसमें प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया, एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, नॉट एज पर द प्रेफरेंस ऑफ प्रोड्यूसर. जो कंज्यूमर चाहता है, मनी, डिफेक्टेड गुड्स को रिप्लेस करना या उसको ठीक करना, जैसा कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उससे क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा. नाउ द लास्ट राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इट इज़ द राइट ऑफ to acquire the knowledge and skill to be informed to the customer. जो कंज्यूमर है उसको सारी जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए? प्रोवाइड होनी चाहिए. It is very easier for the literate consumer to know how to use the good and what are their rights and how to grab their rights. But this is the right specifically made for the illiterate person, that so that the illiterate person can also get information about the product, and every of the consumer, whether the educated one, whether the uneducated one, is having the right to get the education about the product and about the use of the particular product. Now, see further, the government of India has included consumer education in the school curriculum एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज. इस चीज़ को और ज़्यादा क्या करने के लिए, अवेयर करने के लिए, इसे और वाइड स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट हैव टेकन द इनिशिएटिव टू इंक्लूड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट इन द स्कूल एजुकेशन एंड एज वेल एज इन द यूनिवर्सिटी कोर्सेज, एंड दैट इज़ वाई यू पीपल आर रीडिंग और you are studying this concept in the class 12th. See further, government is also making use of media to make the consumers aware of their rights and make wise use of their money. और जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, डिफरेंट मीडिया का भी हेल्प ले रही है, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स गवर्नमेंट फ्रेम करती है. जैसे कि आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जागो ग्राहक जागो. अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर देयर इन दिस सीरीज. बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं जो कि कंज्यूमर को उसके एक्सप्लॉयटेशन से एलिमिनेट करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, that have been broadcasted in the welfare of the common public. Now see further, a note is here. Apart from above 6 rights, 2 additional rights are recommended by the UNO. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने वो प्रीवियस 6 राइट्स हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो these 6 rights are included, but apart from these 6 rights, 2 further rights are there. The first right, right to satisfaction of basic needs. That means basic needs of the consumer must be fulfilled at a very reasonable prices. And the second one, a right to healthy and sustainable environment. That means producer must not ignore the environmental aspect and the sustainable development aspect in the race of making more and more production or earning higher and higher amount of profit. So all these are the different rights that have been provided to the consumer by the government. Now there comes the second concept, that is the consumer responsibility. We all know, until and unless we will not stand for ourselves, none of the government, none of the NGO can make the situation better. So what is needed, the required situation is that the consumer must stand for himself and herself, then only the government or the NGO can help out the consumer. So there are some responsibilities that are of consumer. Maybe we are aware of it, maybe we are not aware of it. If we are not aware of it, but now after getting this information, we must be responsible consumer. देखते हैं बेटा कौन कौन से responsibilities हैं. The very first, consumer must exercise his right. वी ऑल हैव डिस्कस द 6 राइट्स. हमने 6 राइट डिस्कस कर लिए हैं. तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट. जो भी कंज्यूमर को राइट्स मिले हैं, कंज्यूमर को उन राइट्स को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड वन, कॉशियस कंज्यूमर. कॉशियस दैट मीन्स द वेरी अटेंटिव. इसका मतलब देखिए बेटा, द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर. Cautious consumer means that whatever the decision is made by the consumer must be
इन्वॉल्विंग हिज और हर माइंड, इट इज़ नॉट सो कि अगर आपसे प्रोड्यूसर ने कहा तो आपने ब्लाइंडली उस पर क्या कर दिया, फेच कर दिया. ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग द फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट. और कंज्यूमर को इंसिस्ट करना चाहिए कि प्रोड्यूसर उसको क्या करे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. एंड बिफोर परचेजिंग और यूज ऑफ द एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कंज्यूमर मस्ट पुट ऑन हिज और हर माइंड before using the products. This is the cautious consumer. That means the second responsibility. Next, filing complaints for the redressal. If exploitation occurred over there, so it is your responsibility कि आपको क्या करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, कंप्लेन को फाइल करना चाहिए, सो दैट द रिड्रेसल कैन बी मेड. दैट मीन्स द जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड यू इन द फॉर्म वट एवर यू वॉन्ट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द डिफेक्टेड गुड, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट इन द गुड. The next one, that is the consumer must be quality conscious. Consumer, the main problem is this, that most of we as a consumer are the quantity conscious. That means we make more emphasis on the quantity, but it must not be there. The consumer must be the quality conscious. That means the problem, that means the various problems such as the supply of the substandard goods, that means low standard goods, adulterate goods, that means जिसमें मिलावट होती है, and duplicate products जो कि copied होते हैं. ठीक है, can these all these problem can be solved only when we will be the क्वालिटी कॉन्शियस. व्हाट वी वांट कि हमारे शूज़ में वो 3 लाइन्स तो हों, लेकिन हमको रिबॉक की तरह अमाउंट पे ना करना पड़े. व्हाट वी वांट कि वहाँ पे एक टिक तो हो, बट वी डोंट वांट टू पे द अमाउंट लाइक द नाइकी. सो व्हाट वी आर द क्वांटिटी कॉन्शियस. बट ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब स्टैंडर्ड गुड्स की, एडल्ट्रेटेड गुड्स की, डुप्लीकेट गुड्स की, ये सारी प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगी, व्हेन द कंज्यूमर विल बी द क्वालिटी कॉन्शियस इन प्लेस ऑफ द क्वांटिटी कॉन्शियस. नेक्स्ट, do not be carried away by the advertisement. We all have watched a lot of advertisement, and in every of the advertisement, especially in the most of the advertisement, celebrities are there to influence us, to motivate us, to provoke us. And in most of the advertisement they have super vision of their product. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है, बहुत ज़्यादा सुपरिफिकेशन उसका कर रखा है. एंड एज अ रिजल्ट जो उसमें क्वालिटीज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस करके क्या करते हैं, शो करते हैं. सो वट एवर द एडवर्टीजमेंट्स आर देयर, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वट एवर हैव बीन टोल्ड इन द एडवर्टीजमेंट, ऑल थिंग्स डजंट कम ट्रू. सो वी हैव टू मेक द माइंड, इफ़ द पर्टिकुलर सेलर इज सेइंग कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा, तो वी मस्ट यूज़ आवर माइंड कि भाई अगर इज इट पॉसिबल टू बी हैपन, क्या ये हो सकता है सच में. सो वी हैव टू बी रैशनल, वी मस्ट नॉट बी कैरीड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट्स. नेक्स्ट, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. व्हाट इज कैश मेमो, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बिल. दिस इज द कैश मेमो. Suppose you want to file a complaint for the exploitation that have been done with you, sorry. So in that condition you have to प्रेजेंट द एविडेंस ऑफ परचेज, कि आपने परचेज किया, आपको उसको पहले आपको उसको प्रूफ देना पड़ेगा दैट यू हैव परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यू हैव हायर्ड द पर्टिकुलर सर्विस. एंड हाउ इट विल बी प्रूव्ड, इट विल बी प्रूव्ड ओनली विद द कैश मेमो, कि आपने हाँ इसका अमाउंट क्या किया है, पे किया है. सो कैश मेमो इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिल दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. See further, a seller is bound to give a cash memo even if the buyer does not ask for it. ये कंज्यूमर अगर बिल के लिए इंसिस्ट नहीं भी करता है, बोलता भी नहीं है, तब भी एक प्रोड्यूसर बाउंड है क्या करने के लिए, बिल प्रोवाइड करने के लिए. नाउ रिकॉल हाउ मेनी टाइम वी यूज टू परचेज द गुड एंड हाउ मेनी टाइम वी यूज टू टेक द बिल. I think in the very rarest condition we used to take the bill, and in many of the concern we used to get the bill, but we are not even bothered about the bill. What we used to do, we used to throw the bill that in the dustbin. ठीक है. सो जो इंसिस्ट करना चाहिए कंज्यूमर को किस पे, कैश मेमो पे, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्रूफ दैट यू हैव परचेज द पर्टिकुलर कमोडिटी एंड यू हैव पेड फॉर द सेम. नाउ देर आर डिफरेंट मार्क्स इंडिकेटिंग द क्वालिटी इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. हम ये बोलते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए. तो ये क्वालिटी के लिए डिफरेंट मार्क्स हैं. कौन कौन से मार्क्स हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज़ द ISI मार्क,
एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ISI मार्क, इट इज़ फॉर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, जिसमें हम लोग बात करें वॉशिंग मशीन, AC, आपका फ्रिज हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ पीपल यूज टू ड्राइव, तो आप लोग हेलमेट पहनते हैं, तो इन द स्टैंडर्ड हेलमेट्स ऑल्सो ISI मार्क इज़ देयर, जो कि आपके ड्यूरेबल प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि हाँ जो उसकी क्वालिटी वो अप टू द स्टैंडर्ड है। सेकेंड वन, एग मार्क, it is specifically for the agricultural commodities and the livestock products. For example, if we talk about eggs, तो this is a livestock product, तो उसमें egg mark होगा. If we talk about the pulses, तो उसमें egg mark होगा, ठीक है. These are the symbols. ये symbols भी that these symbols can be asked in the exam, कि आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि ये symbol किसका है. Next, that is the BIS. This is also known as the hallmark, specifically for the gold jewelry. इसका मार्क देख लेंगे बेटा कैसा होता है. और जो ये आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी हैं उसमें इस बात को एश्योर करता है कि देयर इज़ नो एडल्ट्रेशन, द गुड इज़ द ज्वेलरी इज़ अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. द नेक्स्ट वन, वूल मार्क, इट सिग्निफाइज 100% प्योर वूल, कि जो आपने वूल परचेज करी वो 100% प्योर है. The last one, that is the eco mark, that is the environment friendly product, that means the good have not been produced with the harassment or with the harsh exploitation of the इन्वायरमेंट. जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें ये साइन है तो इसका मतलब ये कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को लीस्ट एक्सप्लॉयट करके प्रोड्यूस हुआ है. सो दीज आर द डिफरेंट मार्क्स. अब हम इन बात को रिकॉल रखेंगे और वेन एवर वी यूज़ टू परचेज द प्रोडक्ट तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इन सारे मार्क्स को वहाँ पे क्या करें, देखें. बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर. नाउ, what are the different relief or remedies available to the consumer on complaint filed by him? सपोज कर लो कि भाई मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो मुझे कौन सी रेमेडीज मिल सकती हैं. द रेमेडीज हैव बीन टोल्ड ओवर हियर. सम ऑफ द रेमेडीज. द फर्स्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स. जो भी गुड में डिफेक्ट था उसे रिमूव कर देना, दिस कैन हैपन. सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, कि आपको पूरा गुड ही रिप्लेस करके नेक्स्ट आपको नया गुड जो न्यू प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड किया. नेक्स्ट, दैट इज़ द रिफंड ऑफ प्राइस पेड, वट एवर द अमाउंट यू हैव पेड, वो अमाउंट आपको क्या कर दिया, रीपेड कर दिया, रिफंड कर दिया. नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, जितने का आपको लॉस हुआ है, जो इंजरी हुई है उसको मॉनेटरी फॉर्म में कंपनसेट किया. नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि अब वो फ्यूचर में जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो कंटिन्यू नहीं होंगी, दैट हैव बीन स्टॉप्ड. एंड लास्ट, स्टॉपिंग द सेल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि आपने उस पर्टिकुलर डिफेक्टेड गुड को ही सेल आउट करना क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया, ठीक है. So all these are the different remedies that are available for the consumer. Now the role of consumer organizations and NGOs, although this part have been deleted, but still for the safe side we are going to discuss it. If we talk about our country, then in our country, that means in India, around 500 consumer organizations are working for the protection of consumer. Kitni organization? 500 organizations are working for this. The most popular are Consumer Guidance Society of India, Mumbai; Citizen Action Group, Mumbai; Consumer Unity and Trust Society, that is CUTS, एक्सेट्रा. ये डिफरेंट इन्होंने आपको डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताए हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. These associations are performing a lot of functions such as educating consumers, कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, डिफरेंट पीरियोडिकल्स को पब्लिश करते हैं, दैट मीन्स प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कैरिंग आउट द कंपैरेटिव टेस्टिंग, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें बोलते हैं कि दिस इंग्रेडिएंट इज अवेलेबल, तो ये उसको टेस्ट करते हैं कि वट एवर हैव बीन टोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं. एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर एक्सेट्रा. इफ़ देर इज़ द केस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, तो कंज्यूमर को क्या करते हैं, जो असिस्टेंस है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ऑल दीज आर द फंक्शंस दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस and NGOs working in our country. Along with this, what we have discussed today, this is all about today's lecture. What we have discussed today, we have discussed about the different 6 rights of the consumer, thereafter 2 rights by the UNO, thereafter responsibilities of the consumer, different responsibilities of the consumer. Next, quality standard signs such as egg mark, BIS, hallmark and all. And the last, the remedies available to the consumer on filing of the complaint. And the last but not the least, that is the role of NGOs and different organizations in the consumer protection concept. This is all about today.
This is all about chapter as well, and this is all about syllabus as well. With this, the syllabus have been completed. Lots of love and God bless.